Good morning, students. In this video, you will learn about Microsoft Excel. So, previous video, which was the depend on the Microsoft Excel also, but in that video, you had learned about some basic parts of Microsoft Excel. So, in this video, we will learn about the remaining part of this chapter, just like entering the data in the cell. So, we will just recall that how to enter the data in cells. Then you will know about the types of data and selecting cell, that how you can select a particular cell or cell range. Then editing data in the cell, copy or moving the data from one cell to another or from one part to another part of the Microsoft Excel sheet. Then you will know about the how to insert a row and column in your sheets and deleting data, rows and column, and using autofill, that how you can use the autofill. And the last, you will know about the calculation using the Excel. Okay, so this is the main part of the Excel and main advantages of the Excel, that how we can calculate and we can perform the any type of calculation on our data. So now let's begin with this video. So first of all, you have to know that how to open Microsoft Excel. Okay, so just click on the star button and go to the Microsoft Office. Here you can see the Microsoft Access and just click on the Microsoft Excel. So here you can see this Microsoft Excel. Okay. So after clicking on this uh, option, you will get Microsoft Excel here like. Okay. सो ये है आपकी एक्सेल विंडो. अब इसमें डेटा कैसे एंटर करना है ये आपने प्रीवियस वीडियो में आपने सीख लिया था. ओके. उसके बाद में जब हम लोग बात करेंगे, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कि इसमें कैसे इंटर डेटा करना है. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जब भी शीट आप खोल लेंगे, ओके, तो क्या करना है आपको, जिस भी सेल में आपको एंट्री करनी है उसको पर्टिकुलर ओके क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में यू कैन एंटर द डेटा. ओके. सो जस्ट सपोज मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख रहा हूँ. ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन एंटर. Okay, this is how you can enter the data in the particular cell. Okay, so now let's going the more remaining part of this chapter, which is sub. Our first topic is type of data. Okay, so how many type of data you can enter in the cells? Okay, according to their types. So MS Excel can have three basic type of data, just like numeric, text, and formula. So it can have maximum 32,767 character. Okay, so what is the mean of numeric type of data? So the numeric type of data, which is, so these contain only number which can be both integer or decimal. Okay, so it can be in the form of a full number or in the form of decimal also. Okay, just like 2, 4, 5. Okay, it's a whole number like an integer number, and you can enter or you can cover in the numeric data as a like a decimal number, like a 2.4, 2.5, like this. Okay, so next is a text. Okay, so these are value we can contain the both number and alphabet and are also called as a string. Okay, so whenever we are entering the alphabets or the group of alphabets, just like your words or sentence, so this will uh, known in the form of text. Okay, so text is what the maybe in alphabet or in the combination of alphanumeric. Okay, this one is. Now next is formula. So these contain formula for the calculation. It can also be built in formula. Okay, so there are the two types you can use the formula. Okay, so you can made with your own choice, and you can use the pre-made formula. Okay, in this one. Now, next is selecting cells. Okay, so how you can select a cell? So just take a look on the Excel sheet. This is okay. Okay, so to select a cell, you can just click on that particular cell which you want to select. Okay, so this is how you can click on that cell and just press the Control or C to copy.
Okay, so you can select it. But if you want to select a cell range, okay, so you just need to click on the particular first cell and just without releasing mouse pointer, okay, you just drag wherever you want to go. Okay, so this is how you can select the cell range. ओके, तो ये है आपका सेलेक्ट सेल रेंज करने का तरीका। आपको क्या करना है, जिस क्लिक करना है जिस भी सेल पे आपको जो सिलेक्ट करनी है, और उसको क्लिक बटन को विदाउट रिलीज किए हुए आपको क्या करना है, आपको ड्रैग करके लेके जाना है जहां तक आपको सेलेक्ट करनी है। ओके, सो ये है आपका तरीका सेल रेंज को सेलेक्ट करने का। ठीक है, सेल रेंज मीन व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो नंबर ऑफ ग्रुप है वो नंबर ऑफ जो सेल्स है इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, सो ये है आपके सेल रेंज। बट आपको अगर सिंगल सेल सेलेक्ट करनी है तो आप लोग इस तरीके से, जहां आपको जो आपको सेलेक्ट सेल करनी है उसी पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट द सेल। ओके, सो ये थे आपके सिंगल और ग्रुप। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको कि नॉन एडजेसेंट सेल्स को आप लोग कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो नॉन एडजेसेंट सेल को हम लोग सेलेक्ट करवाएंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है कि जो पास पास में ना हो। ओके, जिसकी नेबर्स ना हो, है ना, ये। तो आपको क्या करना है, जिस फर्स्ट सेल पे आपने क्लिक किया, ठीक है, इसके बाद में मुझे नॉन एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट करना है, तो क्या करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस कर रख के रखना है, और जिस भी आपको सेल को सेलेक्ट करना है उसको आप क्लिक करते रहिए। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो मैं ये अलग अलग सेल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो विदाउट कंट्रोल बटन को रिलीज किए हुए आपको क्या करना है, इन सेल्स को सेलेक्ट करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट सेल जो कि पासवर्ड्स में नहीं है। ओके, अगर अब आप विदाउट कंट्रोल की के अगर आप लोग सेलेक्ट करोगे तो देखो ये इस तरीके से सेलेक्ट होगी। बट आपको क्या करना है, नॉन एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, और जो लास्ट वाली सेल आपने सेलेक्ट कर दी तब आप कंट्रोल वाली कीज को क्या कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट योर डेटा और सेल। अब हम लोग देखते हैं कि जस्ट सपोज इफ यू वांट टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर कॉलम और पर्टिकुलर रो, तो हाउ यू कैन सेलेक्ट। ओके, सो टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर कॉलम, ओके, जस्ट सपोज आपको पूरा पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना हो तो आपको क्या करना है, उस कॉलम की हेडिंग पे, सो दिस इज नोन एज ए हेडिंग। ओके, सो हेडिंग नेम है ये सारे ए बी सी डी। तो जिस भी आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेके जाइए, और जैसे आप लोग माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे वैसे ही ये जो इसका जो कर्सर है वो ड्रॉप डाउन एरो में कन्वर्ट होकर, देखिए यहाँ पे ये प्लस का साइन आता है, और जैसे ही आप लोग यहाँ जाएंगे तो ये ड्रॉप डाउन एरो में आ गया। सो बस क्लिक कीजिए, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग तो ये पर्टिकुलर पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो गया। ओके, सो अगर आपको सेलेक्ट करना है पूरा पर्टिकुलर कॉलम तो आपको क्या करना है, वही आपको क्या करना है, पर्टिकुलर कॉलम पे लेके जाना है जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है, और ड्रॉप डाउन एरो में कन्वर्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, बट अगर सपोज करो आपको मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आप डायरेक्ट या तो इस तरीके से कर सकते हैं ड्रैग करते हुए ले जाके, या फिर अलग अलग कॉलमों को सेलेक्ट करने हैं तो वही है कि आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो जस्ट सपोज करो मुझे सी करना है तो विदाउट अभी मुझे डायरेक्ट क्लिक करना है सी पे, फिर कंट्रोल की प्रेस करके आगे जितने भी मुझे करने हैं उनको सबको मैं कंट्रोल की को विदाउट रिलीज किए हुए मैं इस तरीके से इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो ये है आपका तरीका नॉन एडजेसेंट कॉलम को भी सेलेक्ट करने का। सो नॉन एडजेसेंट सेल, रो और कॉलम जब भी आपको सेलेक्ट करनी होगी तब आपको क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है। ओके, अगर आप पूरी की रो अगर हमको सेलेक्ट करनी है तो क्या करना है, ये जो रेड रो की जो हेडिंग्स है यहाँ लेके जाएंगे आप कर्सर को, तो जैसे आप लोग कर्सर को लेके जाएंगे वैसे ही ये जो ड्रॉप डाउन एरो यहाँ कन्वर्ट हो रहा था अब ये साइड वाले एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, राइट साइड में की तरफ। सो जैसे ही राइट साइड में जिस भी पर्टिकुलर आपको रो को सेलेक्ट करना है आप रो पे लेके जाइए, ये जैसे ही कन्वर्ट होता है 3 नंबर रो पे हो गया है तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आप लोग इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये है तरीका हमका पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करने का। ओके, और अगर नॉन एडिशन रो को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की प्रेस कीजिए और फिर पर्टिकुलर चीजों को सेलेक्ट करते जाइए। ठीक है, ये नाउ नेक्स्ट शीट पे देखते हैं हम लोग, ये एक टेबल बनी हुई है। तो सपोज मैं आपको यहाँ वापस बता देता हूँ कि नॉन एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट करना है तो क्या करना है, आपको कंट्रोल की को प्रेस करके जिस जिस जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज। ओके, और अगर पर्टिकुलर किसी को करना है तो डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट
सेल को क्लिक कीजिए और विदाउट रिलीजिंग क्लिक बटन आपको इस तरीके से ड्रैग करके लास्ट वाली सेल तक जाना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट अ सेल रेंज। यही काम अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो आपको कीबोर्ड से क्या करना है, ठीक है, आप नेविगेशन की से आप अपनी जो एक्टिव सेल को वो इधर उधर राइट लेफ्ट अप एंड डाउन को मूव कर सकते हैं। ओके, और सेल रेंज सेलेक्ट करनी है तो फर्स्ट सेल पे जाएंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और नेविगेशन जो की है उनसे आप राइट लेफ्ट होते हुए लास्ट के जो सेल है, लास्ट वाली सेल पे वहां चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट द सेल रेंज विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आल्सो। ओके, ये है आपका सेल को सेलेक्ट करने का तरीका। नाउ coming up to the next topic, which is edit data in the cell. So how you can edit the data? So you can edit the data in a two way. Okay, so you can overwrite the data or you can edit the partially for the modify data. ओके, सो क्या करना है, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि परसेंटेज है, ओके, अभी परसेंटेज, चलिए फर्स्ट जो है हमारा, उसका जो नंबर है ये सपोज करो कि अगर गलत लिखे हुए आ गए, ठीक है, या गलत टाइप हो गए, तो आपको क्या करना है, आपको एडिट करना है डेटा। तो एक तो होता है तरीका कि हम लोग पूरी डेटा को रिप्लेस कर दें। ओके, एक तरीका होता है कि हम लोग उसमें एडिशन करवाएं। तो हम पहले सीखेंगे कि पूरी डेटा को रिप्लेस कैसे करना है। तो जिस भी सेल के डेटा को रिप्लेस करना है आपको जस्ट उसको क्लिक करना है, केवल क्लिक कर, फर्स्ट एक बार क्लिक करके क्या करना है, आपको डेटा को टाइप करना है। जैसे सपोज करो मेरे को 255 यहाँ पे टाइप करना है, तो बस मैं 255 लिखूंगा और वो ओवरराइट हो जाएगा। तो जो पहले वाला डेटा है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो गया, अब 255 यहाँ पे आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन रीराइट द डेटा या ओवरराइट द डेटा। ओके, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करके आप यहाँ फॉर्मूला बार में इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी एडिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 386। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन एडिट द डेटा इन योर शीट्स। अब अगर पार्शियली मुझे डेटा एडिट करना है तो क्या करना होगा, क्योंकि जैसे ही मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ और कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ क्या होता है, वो पूरा का पूरा हट रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे पार्शियली डेटा टाइप एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। ओके, so you just need to double click on the particular cell which you want to edit the data in the partially mode. ओके, सो परसेंटेज है यहाँ पे, पी कैपिटल नहीं है तो मुझे पी कैपिटल करना है। ठीक है, तो मुझे क्लिक करके डबल क्लिक करना है, ध्यान रखिए। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको कर्सर विजिबल हो गया होगा। ओके, यहाँ देखिए डबल क्लिक करूंगा और जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो कर्सर विजिबल हो गया। ओके, अब कर्सर को आप राइट लेफ्ट जाके कहीं पे भी आपको एडिट करना हो तो आप लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मुझे पी को कैपिटल लिखना है तो पी को मैंने इरेज किया और कैपिटल पी यहाँ लगा दिया। ओके, इसके बाद में अगर मुझे परसेंटेज का साइन चाहिए तो मैं परसेंटेज का लास्ट में जाके परसेंटेज का साइन भी यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, सो दिस इज, और फिर आपको बाहर क्लिक करना है कहीं पे भी शीट पे। सो ये अब यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, so this is how we can enter sorry edit the data in cell. Okay, in the partially mode or we can overwrite in any cell. Okay, नेक्स्ट है आपका रीडू एंड अंडू कमांड। ओके, सो रीडू और अंडू आपको कहाँ मिलेंगे ऑप्शन, रीडू अंडू आपको इस क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेंगे। सो दिस इज द बटन फॉर द अंडू एंड दिस इज फॉर द रीडू। ओके, सो अंडू का मतलब होता है आपका जो भी आपने जस्ट प्रीवियस टास्क किया है उसको बैक करना। ओके, ठीक है, और रीडो का मतलब होता है आपका जो भी आपने लास्ट टास्क किया उसको वापस करने का। ठीक है, सो यू कैन यूज दीज फंक्शन फ्रॉम दीज बटन। ओके, एंड यू कैन प्रेस कंट्रोल Z as a undo and press control Y as redo. Now next is copying and moving the data. Okay, so how you can copy a data or move to in your file sheets other part. So we will know about this. So let us see that how we can move the data with MS Excel. You can move data from one place to another in a two way. You can either make a copy at another location using the copy and paste, or remove the data from one place to using the cut.
okay, and place it to another location using the paste. Okay, so you can move two types. Okay, अगर आपको सपोज यहाँ से कॉपी इसको करना है, यहाँ रखना भी और कहीं और भी कॉपी करना है, तो आप लोग इस एक तो ये तरीका है, और एक है आप यहाँ से कट करके इसको कहीं और जगह इसको पेस्ट कर सकते हो। तो हम लोग दोनों ही तरीके देखेंगे कि हमको किस तरीके से करना है। देखिए, तो जो भी आपको डेटा अगर सेलेक्ट करना है, ठीक है, कॉपी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट किया, जैसे अमानत को मुझे सेलेक्ट करना था, अमानत को सेलेक्ट किया, तो अब आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, देखिए, ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर पे कॉपी। तो जैसे आप कॉपी पे क्लिक करोगे, ये कॉपी ये इस तरीके से हाईलाइटेड हो जाएगा, और जहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है आपकी शीट में, वहां जाके क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। ओके, सो ये है तरीका आपका माउस से कॉपी और पेस्ट करने का। अगर आपको कीबोर्ड की हेल्प से करना है, तो कीबोर्ड की हेल्प से क्या करेंगे आप लोग, पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे, और जहां आपको इसको सेलेक्ट करना है, पेस्ट करना है, वहां जाके कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कॉपी डेटा एंड पेस्ट। ओके, बट जस्ट सपोज करो कि आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर पूरी डेटा को क्या करना है, हटा के आपकी शीट के दूसरे पार्ट में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, जैसे सपोज करो मुझे पूरी की पूरी टेबल अगर यहाँ से रिमूव करके किसी और पार्ट में लेके जानी है, तो क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे कट करूँगा, ठीक है। सो कट करने के लिए वही है, सेलेक्ट किया मैंने पूरी टेबल को, राइट क्लिक किया, फर्स्ट ऑप्शन आपका कट का आ रहा है, तो जैसे आप लोग कट करेंगे, ये कॉपी की जैसे ही होगा एक बार, ठीक है, और जहां आपको पेस्ट करना है वहां क्लिक कीजिए, इसके आगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट हो जाने वाला है। तो पेस्ट करने के लिए वही ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस वी, या फिर राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए वहां से पूरी की पूरी वो टेबल हट चुकी है और यहाँ पे आ गया। Okay, so this is how you can move your data or your table from one part to another part of your MS Excel sheet. Okay, अगर आपको ये टास्क नहीं कर रहा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जस्ट पहले बताया अंडू। तो अंडू के लिए क्या ऑप्शन होता है, कंट्रोल प्लस जेड। तो ये देखिए कंट्रोल प्लस जेड जैसे ही मैंने किया, वैसे ही क्या हो गया, ये अपनी वापस जो लास्ट जो टास्क था उसको इसने अंडू कर दिया है। ओके, रिवर्स कर दिया है उस पर्टिकुलर टास्क का। सो ये है तरीका आपका कॉपी डेटा करने के लिए और मूव करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द शीट टू अनदर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर शीट और अनदर शीट। ओके, अब हम लोग एक बार और देखेंगे इस पर्टिकुलर सेल को कॉपी करके, ठीक है। सो जैसे कॉपी किया, यहाँ गए, जैसे ही हम लोग राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में आपको यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, तो अलग अलग आपको यहाँ पे फंक्शंस देखने को मिलेंगे कि देखिए ऑल, तो जो भी कंटेंट होगा यहाँ पे वो पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला इसमें जो अप्लाई हो रखा है, अगर वो ही पेस्ट करना है, तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। केवल आपको वैल्यूज फॉर्मूला हटा के केवल वैल्यूज अगर पेस्ट करनी है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करके ओके कर सकते हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब कि आपको जिस तरीके से ये फॉन्ट यहाँ लिखा हुआ है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर, वो सारा फॉर्मेट आपका कॉपी हो जाएगा। अगर आपने कोई कमेंट यहाँ पे छोड़ रखा है, तो कमेंट ही केवल कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल दीज फंक्शन यू कैन कॉपी। या तो आप इनको सबको एक साथ ऑल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर पर्टिकुलर आपको चीज चाहिए, तो आप लोग यहाँ से इसको यूज करके इस तरीके से आप लोग पेस्ट स्पेशल जो फंक्शन है वहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसको जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तब। ओके, सो ये है तरीका आपका कॉपी और मूव करने के लिए डेटा को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द शीट टू अनदर पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट point is that how you can insert. Okay, so next point are inserting row and column, that how we can insert a row or a particular column in the sheet. So now let's take a look for sheet। देखिए अगर आपको सपोज करो कि नेम और टोटल मार्क्स के बीच में कोई अगर कॉलम बनाना था, और आप टेबल बनाते वक्त अगर भूल गए, तो आपको इंसर्ट कैसे करनी है कॉलम को, तो क्या करना है, कॉलम हेडिंग पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। ओके, राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक किया, तो जैसे इंसर्ट पे करोगे, तो आपके उसके जस्ट लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ गया। अगर आपको डी के पहले करना है, तो आपको ई पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही जैसे इंसर्ट पे करेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंसर्ट ई हो गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट कॉलम।
और अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो रो कैसे किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, आपको रो हेडिंग पे जाना पड़ेगा। सो रो हेडिंग पे जाके आप देखिए ड्रॉप जो एरो है वो राइट साइड में हो चुका है। यहाँ आके राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करेंगे तो वापस इंसर्ट का ऑप्शन आया है। इंसर्ट के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो जस्ट उसके ऊपर वाली रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट a particular row or column where you want to insert। ओके, आप लोग कितनी भी चाहे रो इंसर्ट कर सकते हैं, कितनी भी चाहे तो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और जो रो हेडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द अरेंजिंग ऑफ द रोज। ठीक है, तो जैसे मैंने सेकंड रो पे क्लिक करके इंसर्ट किया था, जो जिस उसके ऊपर इंसर्ट हुई है तो अब उस रो का नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, देन थर्ड फोर्थ फाइव। ओके, दिस वन। और ऐसे ही आपके जो कॉलम की हेडिंग है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज अगर सपोज करो मुझे ए और बी के अंदर बीच में कोई कॉलम चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा राइट क्लिक करके और जैसे इंसर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए ब्लैंक जो कॉलम है इंसर्ट हो गया और उसका नेम हो गया बी। और आगे जाके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये है तरीका आपका इंसर्ट करने का रो एंड कॉलम। नाउ नेक्स्ट, which is deleting a data rows and column in the sheets। okay, so how we can delete। तो जैसे सपोज करो कि अगर मुझे अब यूज नहीं है इन पर्टिकुलर कॉलम्स का, तो अगर मुझे कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेटा को डिलीट करने की। तो डेटा डिलीट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, सेल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया तो आप डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इजी, तो डिलीट कर सकते हैं ऐसे भी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करिए और डिलीट का बटन प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो ये है तरीका आपका डेटा को डिलीट करने का। अगर आपको कॉलम को ही डिलीट करना है तो क्या करना है, आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डिलीट ऑप्शन पे जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिकली वो डिलीट होकर पूरी जो शीट है वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट कॉलम ऑल्सो। ओके, सो ये सेम शीट वैसे के वैसे हो गई। अब बात करते हैं हम लोग रो को डिलीट करने की। तो वही सेम तरीका है, रो हेडिंग पे जाएंगे, रो हेडिंग पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो ये देखिए ऑटोमेटिक अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई। सो ये है आपका तरीका रो, कॉलम और डेटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे डेटा को लिख देता हूँ अगर मुझे वापस चाहिए तो। ठीक है, क्या करना है, क्लिक करके वापस यू कैन ओवरराइट द पर्टिकुलर डेटा। ओके, नाउ next part is using autofill। Okay, so MS Excel has the feature that help you to enter data automatically when you want to enter a predictable series just like 1 2 3 4। okay, so जब भी कोई predictable series है आप लोग इसमें autofill use कर सकते हो। ठीक है, so just like your number, days of weeks and etc, so you can use this feature called autofill। you can also use this to propagate or copy the formula to another cell after it has been entered in the cell। okay, so you can also copy the data of first cell to other cell too। okay, so how you can use this fill hand or autofill option। देखिए, जस्ट सपोज कि आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ये काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको ऑटोफिल यूज करके हम लोग इस काउंटिंग को तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो वन बाय वन बढ़ने ही वाला है, तो हमको ना इसको एंटर नया करके क्या करना है, ऑटोफिल हम लोग यूज करके इसको इसकी सीरीज हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको पर्टिकुलर जो तीनों सेल है ऐसे सेल रेंज हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो माउस पॉइंटर आपको जो प्लस वाला दिख रहा है इसको कहाँ लेके जाना है, इसके लास्ट कॉर्नर पे। सो जैसे ही आप लोग इसके लास्ट कॉर्नर पे लेके जाएंगे, ये जो प्लस का साइन है ये आपका अभी देखिए व्हाइट कलर में आ रहा है। अभी जैसे ही आप लोग इस पे जाएंगे तो ये अभी ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा और ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही इसमें कन्वर्ट होता है आपको क्या करना है, यहीं इसी पॉइंट पे इसको क्लिक करना है और विदाउट रिलीजिंग क्लिक बटन जस्ट आपको क्या करना है, ड्रैग करना है जहां तक आपको नीचे लेके जाना है। ठीक है, और जैसे आप लोग इसको रिलीज करोगे तो ये काउंटिंग देखिए क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आपका काम यहाँ पे बहुत आसान हो चुका है कि आपने ये डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया। अब आपको नंबर और
नेम इंसर्ट करने होंगे, ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या केवल इंसर्ट करना है टोटल मार्क्स और नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, सो ये है आपका ऑटोफिल यूज करने का तरीका। अगर आप लोग संडे मंडे अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, नेम ऑफ वीक, तो जैसे अब मैंने संडे यहाँ SUNDAY संडे लिखा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मंडे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर पूरे वीक के नेम चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, केवल मैंने दो लिखे, सेलेक्ट किया दोनों को और वापस वहीं पॉइंटर को ले जाके क्लिक करके विदाउट रिलीजिंग क्लिक बटन क्या करना है, ड्रैग करना है। तो जितना आप ड्रैग कर दोगे ये वीक ऑटोमेटिकली बढ़ चलते जाएंगे, ठीक है। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, देन अगेन वापस ये रिपीट होने लग जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द ऑटोफिल फॉर द वीक्स एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द मंथ्स ऑल्सो। ओके, सो JN लिखा, ठीक है, और वापस इसको मैं ड्रैग करूंगा तो देखिए जैन फेब मार्च अप्रैल मई और जून, इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन use the autofill function. Now, next is the last part of this session, okay, and this chapter, which is calculation using Excel. Okay, so Excel में हम लोग कैलकुलेशन कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन यूज करने के लिए एक बार मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट, ओके, एंड ये डिलीट, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन कैसे डिलीट कैसे करना है, तो सपोज करो जैसे यहाँ हम लोग इसमें मार्क 1 ले लिया, ओके, और यहाँ मुझे ओवरराइट करके मार्क 2 लेके और यहाँ मुझे टोटल अगर सपोज करो फाइंड करना है, ठीक है। तो मार्क्स 2 के अंदर मैं यहाँ ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 स्टूडेंट के आ गए। अब मुझे टोटल फाइंड करना है, तो टोटल फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या तो मैं यूजिंग कैलकुलेटर करूँ, लेकिन एक्सेल ही ऑलरेडी हमको फीचर देता है कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, सो वी कैन यूज दैट फीचर ऑफ एक्सेल। ओके, तो वो क्या है, सो वी कैन यूज द MS Excel टू एग्जीक्यूट द फॉर्मूला टू ऐड, subtract, multiply and divide like calculator. So a formula is an equation that perform calculation and has a special format. Okay, it consists the special code which we enter to enter the cell. The calculation are performed and the result is displayed in the selected cell. And you can perform these calculation only on the न्यूमेरिक डेटा। ओके, सो जो भी कैलकुलेशन है वो आप लोग किस पे परफॉर्म कर पाएंगे, आपके न्यूमेरिक डेटा पे। ओके, और जिस भी आपको सेल में आपको आउटपुट चाहिए, उसका कैलकुलेशन चाहिए, तो आपको जो फॉर्मूला है वो उसी सेल में लगाना होगा, ठीक है। सो कैसे क्रिएट करते हैं फॉर्मूला, जिस भी सेल में आपको लगाना है, जैसे सपोज करो मुझे इसी सेल में लगाना है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ठीक है, और डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, और क्या करना है, मुझे सबसे पहले प्लस जो मार्क है वो यहाँ लगाना है, ठीक है। तो प्लस साइन यहाँ लगाया। अब मुझे ये और इन दोनों को सेल को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए ये एक तरीके से सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे C2 टाइप हो गया। C2 क्या है, इस सेल का एड्रेस जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ओके, ये C2 है आपका प्रीवियस सॉरी इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस, ठीक है। ये सी से कॉलम है 2 रो। अब आपको प्लस करना है इसको किस में, तो प्लस करना है, तो जैसे हम लोग प्लस करने के लिए प्लस साइन दबाएंगे, और किस में प्लस करना है, इसके अंदर, तो इसको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम दोनों सेल को सेलेक्ट किया 1 बाय 1 और बीच में प्लस का साइन लगाया। अब जैसे आप लोग एंटर प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली देखिए इन दोनों का जो समय वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये है तरीका आपका फॉर्मूला और अप्लाई सॉरी फॉर्मूला यूज करने का है, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन करने का, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए, मैं आपको वापस बता देता हूँ कि अगर आपको क्या करना है, इन दोनों सेल को सेलेक्ट ऐड करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस साइन लगाना है। प्लस साइन लगाने के बाद में आपको क्या करना है, सेलेक्ट करनी है सेल जिसको भी आपको ऐड करना है, और बस प्लस का साइन लगाइए, और जो जिसके अंदर ऐड करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इन पर्टिकुलर सेल के नंबर ना दिख के आपको सेल का एड्रेस दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले C, और ये 3, और ये था आपका D3,
ओके, तो जैसे एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐड होके यहाँ पे आउटपुट ऐसा आ जाएगा। ये है तरीका आपका। हम लोग जब बात कर रहे थे ऑटोफिल की, तब हम लोगों ने बात की थी कि वो फॉर्मूला भी कॉपी करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, वापस यहाँ क्लिक करेंगे और ड्रैग करके जैसे ही नीचे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कॉपी होके इन दोनों सेल्स का एडिशन यहाँ पे ही आने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका ऑटोफिल से फॉर्मूला को कॉपी करने का तरीका। ओके, ये थी बात आपकी टोटल करने की। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो मैं अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, बस वही इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद में जैसे इसमें से मुझे सपोज करो मार्क्स 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे ये सेलेक्ट किया, फिर माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन लगाने के बाद में इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। तो टोटल में सिर्फ मार्क्स 2 को मैंने माइनस किया और माइनस करने के बाद में जो बचा है वो क्या है, मार्क्स 1 की वैल्यूज आ गई। ओके, so this is how we can subtract a cell. Okay, subtract a cell from another cell. Okay, so we can perform any type of calculation from using the excel, ठीक है। वही अगर आपको फॉर्मूला को कॉपी करना है तो फॉर्मूला कॉपी करने के लिए वापस फिल हैंड अगर यूज कर रहे हो तो आपको ड्रैग करना है, माउस पॉइंटर को यहाँ लेके जाना है और ये चेंज होते ही क्लिक करके ड्रैग करके नीचे लेके आना। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन use the calculation in excel। okay, so now we have completed all these section, okay, in this video. So what we have learned in this video, so just a recap of that. So first of all we just learn about the type of data, okay, so which is numeric types and formulas। okay, so numeric mean what, the when we are entering or we are just inserting the numbers। okay, so this type of data is known as a numeric। फिर हमने बात की थी टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट मतलब होता है कोई भी स्ट्रिंग, वर्ड, टेक्स्ट, ओके, या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स या अल्फा न्यूमेरिक जो भी टाइप की जो डेटा होता है उनको, उसको हम लोग एज अ टेक्स्ट कंसिडर करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग फॉर्मूला की जो हम लोग यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। देन उसके बाद में हमने देखा कि सेलेक्ट कैसे करते हैं सेल को, पर्टिकुलर सिंगल सेल और सेल रेंज। Then edited data in the cell, that how we can edit the data in particular cell, so we can overwrite on a particular cell or we can edit the partially। फिर उसके बाद में देखा हमने मूव करना डेटा को फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ओके, सो हम लोग कट करके मूव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट। ओके, फिर हमने देखा था इंसर्ट कैसे कर रहे हैं रो एंड कॉलम को, सो जस्ट बाय क्लिक, राइट क्लिक एंड प्रेस द इंसर्ट फॉर द रो एंड कॉलम। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा डेटा को डिलीट और करना है कैसे है, रो को कैसे डिलीट करना है और कॉलम को कैसे डिलीट करना है। देन ऑटोफिल हमने यूज किया और उसके जस्ट लास्ट में कैलकुलेशन। सो आई थिंक you are very well known about these topic of the excel। okay, so if you have any doubt and any query, so you can just drop your message in the comment section or you can message me also। okay, so watch this video again if you have any confusion about regarding this। okay, and keep watching the video for knowing more about the some basics of computer। so stay happy and stay safe। thank you।